بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ قیامت کے دن بعضی قوموں کا حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں پر نور ہی نور ہوگا، روشن چہرے، چمکتے دمکتے چہرے، خوبصورت چہرے، حسین و جمیل چہرے۔ 14ویں رات کے چاند میں بھی اتنا نور نہیں ہوگا جتنا اللہ جل شانہ ان لوگوں کے چہروں پر اللہ نور ڈال دے گا۔ لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ، نور سے چمک رہے ہوں گے، اور وہ بھی قیامت کے دن، اتنا سخت دن، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ ناف تک ہوگا، کسی کا پسینہ گردن تک ہوگا، کوئی سارے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اتنا سخت دن قیامت کا۔ قیامت کے دن میری ماں میرے سامنے کھڑی ہوگی، میں اس کو پہچانوں گا نہیں، میں اپنی ماں کو قیامت کے دن نہیں پہچانوں گا، میں اپنے باپ کو قیامت کے دن نہیں پہچانوں گا، میں اپنے بھائیوں کو قیامت کے دن نہیں پہچانوں گا۔ کتنے عظیم رشتے ہیں، کتنی قیمتی رشتے ہیں، پہچاننے تو دور کی بات ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ، میں بھاگوں گا قیامت کے دن، اپنی ماں سے بھاگوں گا، اپنے باپ سے بھاگوں گا، اپنے بیٹوں سے بھاگوں گا، اپنی اولاد سے بھاگوں گا، بھائیوں سے بھاگوں گا۔ کیوں بھاگوں گا؟ یہ میں قیامت کے دن اپنی ماں کو کیوں نہیں پہچانوں گا؟ کہیں یہ ماں مجھ سے آج ایک نیکی نہ مانگ لے، یہ میرا باپ مجھ سے آج ایک نیکی نہ مانگ لے، یہ میرے بیٹے آج مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لیں۔ آج نیکیوں کا دن ہے، آج کی کرنسی نیکیاں ہیں۔ اتنا سخت دن قیامت کا۔ ان اللہ یمسک السماوات یوم القیامت علی اصبعین والارضین علی اصبعین والماء والثرى علی اصبعین والشجر والجبال علی اصبعین وسائر الاشیاء علی اصبعین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حبر آیا۔ حبر کہتے ہیں یہودیوں کے ایک بڑے عالم کو، جاء حبر من الیہود الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑا یہودیوں کا عالم، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ قیامت کے دن 7 آسمان اللہ کی ایک انگلی پر ہوں گے، والارضین، اور 7 زمینیں اللہ کی دوسری انگلی پر، پہاڑ اور درخت اللہ کی تیسری انگلی پر، پانی اور ثرا یہ اللہ کی چوتھی انگلی پر، اور ساری مخلوق اللہ کی انگلی پر ہوگی۔ اب اللہ کی انگلیاں ایسے نہیں ہیں جیسے ہماری انگلیاں ہیں، کما یلیق بشانہ، جو اس کی شان ہے، جو اللہ کی شان ہے اس کے۔ پھر ثم یہزہن، پھر اللہ ان کو حرکت دے گا، ان 7 آسمانوں کو، 7 زمینوں کو، پہاڑوں کو، درختوں کو، پانی اور ثرا کو
अल्लाह इनको हरकत देगा। सुम्मा यहुज़्ज़ुहुन्ना, फिर अल्लाह जल्ल शानु फरमाएंगे अनल मलिक, मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं। ऐनल मुलूकुल अर्द, जमीन के बादशाह कहां गए? ऐनल जब्बारून, ऐनल मुतकब्बिरून, जाबिर लोग, मुतकब्बिर लोग कहां गए? मैं बादशाह हूं। कि इतना सख्त दिन कयामत का होगा। कयामत का ज़ल्ज़ला ऐसे नहीं होगा जैसे आजकल छोटे छोटे झटके लगते हैं। कयामत का ज़ल्ज़ला ऐसे नहीं होगा। अल्लाह जल्ल शानु फरमाते वहुमिलतिल अर्द वल जिबाल फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, हम जमीन को उठाएंगे, पहाड़ों को उठाएंगे और इनको उठा उठा कर एक दूसरे से टकराएंगे। जब जमीन उठेगी कोई मोहल्ला रह जाएगा, कोई गांव रह जाएगा, कोई तहसील रह जाएगी। जब अल्लाह जमीन को उठाएगा, पूरी जमीन को उठाएगा, कोई शहर जमीन पर रह जाएगा, कोई मुल्क रह जाएगा और सबको उठा उठा कर अल्लाह एक दूसरे के साथ टकराएंगे। एक दफा टकराने से ये सारा निजाम रेजा रेजा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आसमानों को अल्लाह तोड़े अल्लाह आसमानों को तोड़ेगा, जमीनों को तोड़ेगा, इन बड़े बड़े पहाड़ों को रुई के गालों की तरह हवाओं में बिखेरेगा। कुल्लु मन अलैहा फान वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, सबको फना है, उसी अल्लाह को बका है। तो इतना सख्त दिन, और बाजी लोगों के चेहरे नूर से चमक रहे, खूबसूरत चेहरे, अला मनाबिर लुअलुई, मोतियों के मिंबरों पर बैठे हैं कयामत के दिन। यग़बितुहुमुन नास, और लोग उनको देख देख कर रश कर रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, ये कौन से लोग हैं, ये इतनी अजमतों वाले लोग कौन से हैं, ये इतने खुश नसीब लोग कौन से हैं, इतनी फजीलतों वाले लोग कौन से हैं कि कयामत के दिन इनके चेहरे चमक रहे हैं और मोतियों के मिंबरों पर बैठे हैं, लोग उनको देख देख कर रश कर रहे हैं। लैसु बिअंबिया अवला शुहदा, ये अंबिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात और शुहदा नहीं होंगे, या ना ये नबी होंगे ना ये शुहदा होंगे। काल फयत अराबीन अला रुकबतई, एक जिहाद के रहने वाले सहाबी साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो जान होकर बैठ गए। काल हुल्लिहिम लना नारिफुहुम, प्यारे नबी जी आप हमें उनका हुलिया तो बता दें, ये कौन लोग होंगे, ये खुशकिस्मत लोग कौन होंगे, इतने बड़े नसीबों वाले कौन लोग होंगे, आप हमें जरा उनका हुलिया तो बता दें ताकि हम इनको पहचान लें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सादिकुल मसदूक हैं, सच्चों के सच्चे, अक्लमंदों के सबसे बड़े अक्लमंद, सच्चों के सच्चे, फरमाया कि कालहुमुल मुतहाबून फिल्लाह मिन कबाइल शत्ता व बिलाद शत्ता, ये वो लोग होंगे जो अल्लाह की मोहब्बत में, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में, और कोई गर्ज नहीं है, सहरोजा लगाने की, शबे जुम्मा में आने की, चिल्ला लगाने की, साल लगाने की, 7 महीने लगाने की, अल्लाह के रास्ते में फिरने की, और कोई गर्ज नहीं है। गर्ज सिर्फ यही है कि मुझे मेरा अल्लाह मिल जाए, बस अल्लाह की मोहब्बत। जिसको अल्लाह मिला उसको सब कुछ मिला, जिसको अल्लाह ना मिला उसको कुछ भी ना मिला, उसको कुछ भी ना मिला।
वो लश्करों के साथ होते हुए भी फकीर है, वो जमीनों के साथ होते हुए भी फकीर है, वो दुनिया के सारे मादी नक्शों के साथ होते हुए भी वो फकीर है, वो हुकूमतों के साथ होते हुए भी वो फकीर है, वो बादशाहत के तख्त पर बैठे हुए भी फकीर है कि जिसको अल्लाह मिला उसको सब कुछ मिला, जिसको अल्लाह ना मिला उसको कुछ भी ना मिला, कुछ भी ना। आज के लोग क्या खजाने इकट्ठे करेंगे, आज के लोग क्या खजाने और क्या जायदादें और क्या मादा इकट्ठा करेंगे जो अल्लाह जल्ल शान ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाया था। वकज़ालिका इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द। अल्लाह जल्ल शान ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान की ताकतें दिखाई, जमीनों की ताकतें दिखाई, आसमानों के खजाने दिखाए, जमीनों के खजाने भी दिखाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह ये जो आप मुझे खजाने दिखा रहे हैं, इन खजानों में कुछ है भी सही, इन खजानों में, इन ताकतों में कुछ है भी सही। अल्लाह जल्ल शान फरमाया कि इब्राहीम सारा कुछ मुझ में है। इन वजदतनी वजदत कुल्ल शै व इन फुतनी फातक कुल्ल शै। अगर तूने मुझे पा लिया तो सब कुछ को पा लिया, और अगर तुमने मुझे खो दिया तो फिर तूने सब कुछ को खो दिया। वह अना खैरुल लक मिन कुल्लि शैइन, मैं तेरे लिए हर चीज से बेहतर हूँ, मैं तेरे लिए हर चीज से बेहतर हूँ। मैं तेरे लिए सोने चांदी के ठीकरों से भी बेहतर हूँ, कपड़ों के चीथड़ों से भी मैं तेरे लिए बेहतर हूँ, जमीनों के टुकड़ों से भी मैं तेरे लिए बेहतर हूँ, और नेस्तो नाबूद हो जाने वाली वजारतों सदारतों से भी मैं तेरे लिए बेहतर हूँ, और फना हो जाने वाले ओहदे और डिग्रियों से भी मैं तेरे लिए बेहतर हूँ। वह अना खैरुल लक मिन कुल्लि शैइन, ऐ मेरे बंदे मैं तेरे लिए हर चीज से बेहतर, तू मेरी तलाश कर, तू मुझे पा, तो मेरे दीन के लिए मुशक्कतें उठा, तो मेरे दीन के लिए फिर सारी दुनिया में तो ये अल्लाह की मोहब्बत में। और इन लोगों के कबीले मुख्तलिफ होंगे, इनके खानदान मुख्तलिफ, कली कबीले, वो एक कबीले के नहीं होंगे, एक खानदान के नहीं होंगे, एक इलाके के नहीं होंगे, उनके खानदान मुख्तलिफ होंगे, उनके इलाके मुख्तलिफ होंगे, और वो एक जगह इकट्ठे होंगे, और उनका मकसूद क्या होगा? अल्लाह का जिक्र होगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये हदीस 100% इस मजमे पर सच्ची साबित हो रही है, इस मजमे पर सादिक आ रही है, सच्ची साबित हो रही है कि हम में किसी का कबीला एक नहीं है, खानदान एक नहीं है, हम में से किसी का इलाका भी एक नहीं है, और हम क्यों बैठे हैं? बस अल्लाह के लिए बैठे, अल्लाह चाहिए, अल्लाह चाहिए। तो ये 100% ये हदीस इस मजमे पर सादिक आ रही है। तो मेरे प्यारे भाइयों, दावत और तबलीग का काम बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह के दीन के लिए मारे मारे फिरना, एक गली से दूसरी गली, एक महल्ले से दूसरे महल्ले, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, कभी पहाड़ों की चोटियों पर जाकर अल्लाह के दीन की सदाएं लगाना, कभी सैकड़ों मील जंगलों में जाकर अल्लाह के दीन की बातें करना, वालिदैन छोड़ना, बी बच्चे छोड़ना, कारोबार छोड़ना, इलाके छोड़ना, अल्लाह के दीन के लिए सर्दी गर्मी बर्दाश्त करना, भूख प्यास बर्दाश्त करना, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये बड़ा आसान है। लेकिन उस वक्त कि जब अपना मरना सामने हो, अपनी मौत सामने हो, कयामत का दिन सामने हो, कब्र सामने हो, जन्नत सामने हो, फिर अल्लाह के दीन के लिए मारे मारे फिरना, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान हो जाना, ये कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह के दीन के लिए थोड़ी सी सर्दी बर्दाश्त करना, गर्मी बर्दाश्त करना, भूख बर्दाश्त करना, प्यास बर्दाश्त करना, ये कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह के दीन के लिए। जब अपनी मौत सामने हो, आखिरत सामने हो,
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया, वल्लाहि लौ तअलमून मा अअलमु, फरमाया अल्लाह की कसम जो कुछ मैं जानता हूं अगर तुम जानते, लज़हिकतुम कलीला वलबकैतुम कसीरा, तुम्हारा हंसना कम हो जाता, तुम्हारा रोना ज्यादा हो जाता। मौत पर क्या होने वाला है, कब्र में क्या होने वाला है, कयामत के दिन क्या होने वाला है। वमा तलज़्ज़ुम बिन्निसाइ अलल फुरुशी, तुम अपनी बीवियों से अपने बिस्तरों पर लज्जत लेना छोड़ देते। वला खरजतुम लिसौदात तजारून इलल्लाह, और तुम अल्लाह से फरियाद करते हुए तुम जंगलों की तरफ निकल जाते। लवदित्तु अन्नी कुन्तु शजरतन तुज़दु, और तुम ये कहते कि काश मैं कोई एक दरख्त होता जो जड़ से उखेड़ कर फेंक दिया जाता। आज मौत सामने नहीं है, कब्र सामने नहीं है, क़यामत का दिन सामने नहीं है, सरोजा मुश्किल है, चिल्ला मुश्किल है, 4 महीने मुश्किल है, ये चीजें सामने नहीं। अल्लाह के दीन के लिए फिरना इसलिए मुश्किल है। जन्नत सामने नहीं है। ईमान क्या चीज है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये क्या चीज है। जहन्नम के अंदर जो सबसे आखिरी आदमी निकलेगा, आखिरी ईमान वालों को निकालेगा, फरिश्तों को भी पता नहीं होगा कि ये जहन्नम के किस पत्थर के नीचे पड़ा है, ये जहन्मी किस पत्थर के नीचे पड़ा है, फरिश्तों को भी पता नहीं होगा। इस ईमान की बदौलत, इस कलमे की बदौलत मुसलमान जरूर निकलेगा। कभी दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, किसी मौके पर अल्लाह से डरा था, फरिश्ते अर्ज करेंगे ए अल्लाह अब तो जहन्नम में कोई नहीं है, सबको निकाल लिया, सारे ईमान वाले निकल गए। अल्लाह जल्ल शानु फरमाएंगे कि नहीं, एक है ईमान वाला, और वो कह रहा है या हन्नान या मन्नान या हन्नान या मन्नान। फरिश्तों को पता नहीं होगा इसका। अल्लाह फरमाएंगे है, ओ फला पत्थरों के नीचे पड़ा है और मुझे पुकार रहा है, मुझे पुकार रहा है। फिर फरिश्ते जहन्नम में जाएंगे, चक्कर लगाएंगे, देखेंगे दाएं बाएं आगे पीछे, ओ पत्थरों के नीचे एक मुसलमान पड़ा हुआ है और कह रहा है या हन्नान या मन्नान। मुहद्दिसीन हजरात ने लिखा है, एक रिवायत लिखी है, ये जहन्नम से निकलेगा, अल्लाह इसको निकालेंगे जहन्नम से, अल्लाह इसको क्या देंगे, इसको क्या देंगे। सबसे अदना दर्जे का जो जन्नती होगा, अल्लाह जल्ल शानो इस आदमी को जो आखिरी जहन्नम से निकलेगा एक सफेद शफाफ मोती का महल देगा, सफेद शफाफ मोती का महल अल्लाह इसको देगा। अब मेरे प्यारे भाइयों, ये महल कितना बड़ा होगा, ये महल कितना बड़ा होगा, ये महल इतना बड़ा होगा कि इसके 70,000 कमरे होंगे, 70,000 कमरे इस महल के होंगे। ये 70,000 कमरों वाला ये महल कितना बड़ा होगा। आज किसके घर में 10 कमरे हों, मेरे घर में 10 कमरे हैं और 10 कमरों में एसी लगे हुए हैं और 10 कमरों में बेड बिछे हुए, सोफे लगे हुए हैं,
میرے گھر میں 10 کمرے ہیں اور یہ 70,000 کمروں والا محل کتنا بڑا ہوگا. اب یہ کمرہ کتنا بڑا ہوگا؟ یہ کمرہ کتنا بڑا ہوگا؟ محدثین حضرات نے ایک روایت لکھی ہے کہ ہر کمرہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے 70,000 دروازے ہوں گے. اب یہ ہال کتنا بڑا ہے، اب اس کے کتنے دروازے ہوں گے؟ 20 سے کم ہوں گے. اس ہال کے مسجد کے دروازے 20 سے کم ہے اس ہال کے. اور وہ کمرہ کتنا بڑا ہوگا کہ جس کے 70,000 دروازے ہوں گے. اب وہ دروازے کتنے بڑے ہوں گے؟ یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں، ہر دروازہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں 70,000 فرشتے اکٹھے داخل ہوں گے اور اس کو سلام کرنے آئیں گے. 70,000 خادم ہوں گے اس کے، ہر دروازے سے اس کو سلام کرنے آئیں گے. اگر ان کو ضرب دیں، یہ 4 ارب 90 کروڑ تو صرف دروازے بنتے ہیں. 4 ارب 90 کروڑ دروازے بنتے ہیں اور 34 پدم اور 30 کھرب فرشتے بنتے ہیں جو اس کو سلام کریں گے. 34 پدم، 100 کروڑ کا 1 ارب، 100 ارب کا 1 کھرب، 100 کھرب کا 1 پدم، 34 پدم اور 30 کھرب فرشتے بنتے ہیں جو اس آخری جنتی کو سلام کرنے کے لیے آئیں. اور یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی، اس کو اللہ یہ سفید شفاف موتی کا محل دے گا اس ایمان کی بدولت. اور دوسری جگہ صاف حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ اس کو دے گا. ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس سب سے ادنا درجے کے ایمان والے کو اللہ دے گا. اب میرے پیارے بھائیو، یہ دنیا کتنی بڑی ہے اور اس سے 10 گنا بڑی جنت کہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس ایمان کا پتہ چلے گا ایمان کتنا قیمتی ہے. یہ تو ادنا درجے والے کو جنتی کو ملے گا. پھر جو اپنے ایمان پر محنت کرے گا اور پھر ساری دنیا کی انسانیت کے لیے، یہ میں بھی اور ہمارے گھر والے، محلے والے، شہر والے اور ساری دنیا کی انسانیت ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامیوں سے بچ کر جنت والی بن جائے. جو اس میں اپنی جوانی کو کھپائے گا، زندگی کو کھپائے گا، اپنی استعدادوں کو لگائے گا اور اپنے مال کو لگائے گا، اب اللہ جل شانہ اس کو کیا دیں گے؟ اس کو کیا دیں گے اللہ؟ اس کو اللہ کون سی اللہ ان کو نعمتیں دے گا؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے دین کے لیے پھرنا، اس پر کیا ملے گا؟ یہ سردی برداشت کرنا، یہ گرمی برداشت کرنا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے مال تقسیم فرما رہے ہیں تو ایک نوجوان آیا، تو اس کے چہرے پر زخم کا نشان تھا. چہرے پر امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کو دیکھا تو پوچھا یہ زخم کیسے لگا تھا، یہ چوٹ کیسے لگی تھی؟ اس نوجوان نے کہا کہ امیر المومنین فلاں جگہ اللہ کے راستے میں مجھے چوٹ لگی تھی.
ये जख्म तो ठीक हो गया, लेकिन इसका निशान बाकी रह गया। ये अल्लाह के रास्ते का निशान बाकी रह गया चेहरे पर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस नौजवान के इस जख्म के निशान पर इतना प्यार आया, इतना प्यार, इतनी हमदर्दी, इतनी शफकत कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाए कि इस नौजवान को 1000 दिरहम दे दो। उसको 1000 दिरहम दे दी। फिर थोड़ी देर के बाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि इसको 1000 और दे दो, इसको अल्लाह के रास्ते में चोट लगी है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह की मजलिस में उन लोगों का बड़ा इस्तकबाल होता था जो जितना ज्यादा अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां कर चुके होते थे, अल्लाह के दीन के लिए जिन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा कुर्बान किया था, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह की मजलिस में उनका इस्तकबाल बहुत ज्यादा होता था। जब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते थे तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह फरमाया करते थे, हमारे सरदार बिलाल आ रहे, ये हमारे सरदार बिलाल आ रहे हैं। जो खानदानी गुलाम थे बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, और दीन के लिए जब कुर्बानियां की तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह फरमाते थे, हमारे सरदार बिलाल आ रहे हैं, हमारे सरदार आ रहे हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह फरमाया कि इसको 1000 और दे दो। 1000 और दे दिए, 2000 हो गए। थोड़ी देर के बाद उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है इस नौजवान को 1000 और दे दो। उसको 1000 और दे दिए। फिर थोड़ी देर के बाद फरमाया कि मेरा दिल करता है इसको 1000 और दे दो, इसको अल्लाह के रास्ते में चेहरे पर चोट लगी, अल्लाह के दीन के लिए। 4000 हो गए। उस नौजवान को शर्म आई कि ये तो सारे उमर रज़ी अल्लाह मुझे ही देते जा रहे हैं, ये मेरे पीछे जो लाइन खड़ी इसका क्या बनेगा। वो नौजवान चला गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया उसके जाने के बाद कि जब तक ये नौजवान यहां खड़ा रहता, ये सारा ढेर उठाकर मैं इसी को ही दे देता। मेरे प्यारे भाई, उमर रज़ी अल्लाह खुदा नहीं है, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह जब इतना देने के लिए तैयार हुए कि सारा ढेर देने के लिए तैयार हो गए, और जो अल्लाह के रास्ते में सर्दी बर्दाश्त करेगा, भूख बर्दाश्त करेगा, गर्मी बर्दाश्त करेगा, बुढ़ापे में निकलेगा, सेहत में निकलेगा, जवानी में निकलेगा, माल लगाएगा, जान लगाएगा, सब कुछ इस्तेदादें लगाएगा, अल्लाह इसको क्या कुछ देने के लिए तैयार नहीं होंगे। अल्लाह को इस पर कितना प्यार आता होगा, अल्लाह क्या कुछ देने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरे प्यारे भाई, ये कोई सवाबी काम नहीं है, ये कोई रिवाजी काम नहीं है, ये हमारा वजीफा हयात है, ये हमारा मकसद हयात है। प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ सिर्फ इबादत गुजार नहीं बनाए थे, इबादत गुजार नहीं बनाए थे, अपने साथ दाई बनाए थे, दाई। जो गम प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वही गम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह का। जो गम प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वही गम हजरत उमर रज़ी अल्लाह का। जो गम प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वही गम सारे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का, वही गम। अब प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम क्या था, उसको अल्लाह ने बयान किया है, उसको अल्लाह ने बयान किया। फलअल्लका बाक़िउ नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहादिल हदीस असफा। प्यार नबी जी, क्या आप अपने आप को हलाक कर देंगे, अपना गला घोंट देंगे कि ये लोग ईमान वाले नहीं बनते, ये लोग ईमान वाले नहीं बनते, क्या इसी गम में अपने आप को हलाक कर देंगे। यही गम प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलियों में फिराता था, मेलों में फिराता था, बाजारों में फिराता था।
या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। यही गम फिराता था। हज के मौसम में एक खेमे से निकलते थे, दूसरे खेमे में दाखिल होते थे, कोई आप पर मट्टी फेंक रहा है, कोई आपको बुरा भला कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और आपका यही गम है, यही गम है कि इंसानियत जहन्नम से बचे, जन्नत में जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों से तशरीफ ले जा रहे हैं। आगे से एक पहलवान आ गया, उसका नाम था रुकाना, बड़ा मजबूत पहलवान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना को देखा, आपके दिल में शफकत, हमदर्दी, ये रुकाना बड़ा पहलवान है, ये जहन्नम से बच जाए, हमेशा हमेशा की जन्नत में चला जाए। आपने उसको दावत दी, रुकाना कलमा पढ़ ले, जन्नत वाला बन जा। अब रुकाना ने कहा कि मोहम्मद, मैं तो पहलवान हूं, मेरा काम है कुश्ती लड़ना, पहले मेरे साथ कुश्ती लड़ो, मेरे साथ कुश्ती लड़ो। अब उस रुकाना को क्या पता था मैं किसको चैलेंज कर रहा हूं। एक नबी के अंदर 40 जन्नती मर्दों की ताकत होती है, 40 जन्नती मर्द, जन्नत का एक मर्द, दुनिया के 100 मर्द, 4000 इंसानों की ताकत ये एक नबी के अंदर होती है, और रूहानी ताकत का कुछ अंदाजा नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ठीक है, मेरे कुश्ती लड़ने से एक आदमी जहन्नुम से बचता है, जन्नत में जाता है, तो लो मोहम्मद तैयार है कुश्ती लड़ने के लिए। अब सामने अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दो हाथ किए, रुकाना को यहां पीछे से पकड़ो, पीछे से पकड़कर ऐसे उठा दिया जैसे एक चिड़िया को टांग से पकड़कर उठा लेते हैं। 4000 इंसानों की ताकत। अब रुकाना हैरान परेशान, ताकि अच्छा एक दफा फिर कुश्ती करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोड़ दिया, फिर दो दो हाथ किए, फिर प्यारे नबी ने पीछे से पकड़ा, फिर उठा लिया। रुकाना ने कहा कि मक्का का दस्तूर है 3 मरतबा कुश्ती होती है, छोड़ दिया, फिर दो दो हाथ किए, फिर रुकाना को उठा दिया। अब रुकाना हैरान है, परेशान कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी लड़ते हुए नहीं देखा, कभी किसी के साथ झगड़ते हुए नहीं देखा। मोमिन किसी के साथ नहीं लड़ता, किसी के साथ झगड़ता नहीं है। मोमिन झगड़े को खत्म करने के लिए अपना हक भी छोड़ देता है, झगड़ा नहीं करता, लड़ता नहीं है। मोमिन गुस्सा नहीं करता। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह मुझे नसीहत फरमाए, फरमाया गुस्सा ना किया कर। फिर कहा या रसूल अल्लाह नसीहत फरमाई, फरमाया गुस्सा ना किया कर। 4 मरतबा आपने फरमाया गुस्सा ना किया कर। ये जेलें क्यों भरी हुई हैं? गुस्से की वजह से तो भरी हुई हैं। ये अदालतें क्यों भरी हुई हैं? ये गुस्से की वजह से तो भरी हुई हैं। ये भाई भाई आपस में नहीं बोलते, किस लिए? गुस्से की वजह से। ये खानदान में झगड़े क्यों हैं? ये मामों के, चचों के, इनके झगड़े क्यों हैं? गुस्से की वजह से। फरमाया गुस्सा ना किया, झगड़ा ना किया। अब रुकाना हैरान है, मैंने कभी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झगड़ते हुए नहीं देखा, लड़ते हुए नहीं देखा। पहलवान होते हैं, कभी वो जोर लगाता है, कभी दूसरा जोर लगाता है, फिर जाकर फैसला होता है। तो रुकाना ने कहा क्या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई आपकी अंदर की ताकत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस अंदर वाली ताकत की तरफ तो मैं तुझे दावत दे रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस अंदर वाली ताकत की तरफ मैं तुझे दावत दे रहा हूं कि कलमा पढ़ ले। फिर रुकाना मुसलमान हो गए थे, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बन गए थे। मेरे प्यारे भाइयों,
जितनी भी मेहनतें हो रही हैं दुनिया में दीन की, सारी सर आंखों पर, सारी मेहनतें हमारी सरों की ताज हैं। किसी मेहनत को हम हल्का नहीं कह रहे, सबकी अपनी अपनी जगह पर अहमियत है, लेकिन महदूद मेहनतें हैं, महदूद हैं, महदूद मेहनतें हैं जितनी भी हो रही हैं। दावत की मेहनत एक समंदर है, समंदर, एक ऐसा समंदर है कि ना तो उसकी लंबाई का पता है, ना उसकी चौड़ाई का पता है, ना उसकी गहराई का पता है। हर शख्स मेहनत करे, किसी के लिए कोई तखसीस नहीं है कि ये करेंगे ये नहीं करेंगे। दावत की मेहनत के लिए कोई तखसीस नहीं है। मजदूर भी करे, फकीर भी करे, डॉक्टर भी करे, इंजीनियर भी करे, वजीर भी करे, मालदार भी करें, गरीब भी करें, काले भी करें, गोरे भी करें, डेरे वाले करें, पाकिस्तान वाले करें, चाइना वाले करें, ऑस्ट्रेलिया वाले करें, जापान वाले करें, सारी दुनिया की इंसानियत दावत, मुसलमान दावत की मेहनत करें। ये एक ऐसा समंदर है, ये एक समंदर है। ना तो उसकी लंबाई का कुछ पता है, ना चौड़ाई का पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इखलास चाहिए, इखलास चाहिए। एक बंदे के इखलास ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इतने ज़ईफ, इतने कमजोर, हड्डी और चमड़ा था, गोश्त का नाम ही नहीं था, गोश्त का नाम ही नहीं था, हड्डी और चमड़ा बस। और जबान में इतनी लुकनत थी कि एक मर्तबा गिना गया, शुमार किया गया, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह कि अल्लाह का नाम ले रहे थे, अल्लाह का नाम ले रहे थे, तो अल्लाह के नाम को लेने के लिए 18 या 19 मर्तबा अटके थे। अल 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 अल्लाह, 18-19 मर्तबा अटकने के बाद अल्लाह का नाम निकला। उस ज़ईफ और कमजोर बंदे की इखलास वाली आवाज को अल्लाह ने अमेरिका में भी पहुंचाया है, अल्लाह ने इंग्लैंड में भी पहुंचाया है, अल्लाह ने जापान में भी पहुंचाया है, अल्लाह ने उस आवाज को चाइना में भी पहुंचाया है, इंडोनेशिया में भी पहुंचाया है, हबशा अफ्रीका में भी पहुंचाया है, बरआज़म यूरोप में भी पहुंचाया है, एशिया में भी पहुंचाया। उस ज़ईफ इखलास की, इखलास चाहिए। अल्लाह ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया उस एक ज़ईफ और कमजोर आदमी की आवाज को। जहाज उड़ते उड़ते थक जाते हैं, जहाज उड़ते उड़ते लैंड कर जाते हैं, थक जाते हैं। वहां देखो तो गश्त हो रहा है, वहां देखो तो खुसूसी मुलाकातें हो रही है, वहां देखो तो फज़ाइल अमाल पड़ी है, तालीम हो रही है, मुशर हो रहे हैं दीन के लिए। एक हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह की आवाज ऐसी इखलास भरी आवाज थी जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज को अल्लाह ने कयामत तक पहुंचाया। इंसानों में जिसने भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज को अल्लाह ने कयामत तक पहुंचाया, हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह की आवाज को अल्लाह ने ऐसा कबूल किया, ऐसा कबूल किया। कितने कितने जहाज बदल कर, 3 जहाज, 4 जहाज, 5 जहाज बदल कर वो रेवण इज्तिमा में पहुंचते। 102 मुल्कों के लोग इज्तिमा पर पहुंचे हैं, 102 मुल्कों के लोग। ये कोई आम बात है? 102 मुल्कों के लोग इज्तिमा में पहुंचे हों। इसलिए हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, कोई अपने पीछे अफराद छोड़कर जाता है, अपने पीछे अफराद छोड़कर जाता है, मैं अपने पीछे उम्मत छोड़ के जा रहा हूं, उम्मत छोड़ के जा, उम्मत छोड़ के जा, अफराद छोड़ कर जा, पूरी उम्मत छोड़ के जा रहा हूं।
मेरे प्यारे भाई, ये हमारा वजीफा हयात है, ये वही मेहनत है, कोई नई मेहनत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, हातिम ताई के बेटे अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अदी ईमान ले आओ ना, इस्लाम ले आओ ना। अदी रज़ियल्लाहु ताला फरमाए कि मैं तो पहले भी एक अपने दीन पर हूं, एक दीन पर हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अदी तेरे दीन को मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं, तेरे दीन को मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं। अब अदी रज़न हैरान हो गए, कैसे जी कि आपके दीन में तुम जो ये माल गनीमत का 10वां हिस्सा खा जाते हो, क्या ये तुम्हारे दीन में है? इतना हिस्सा तुम खा जाते हो, खुद वजीर बादशाह खा जाते हो, ये तुम्हारे दीन में है? कहा कि नहीं, तुम तो खा जाते हो। अब अदी को हैरानगी हुई, परेशानी हुई, ये तो हमारे अंदर की बात है, ये तो हमारे अंदर की बात है, हमारे बादशाहों के वजीरों के अंदर की बात है। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला कि तुम तो खा जाते हो? और फरमाया कि अदी तुम इसलिए इस्लाम नहीं कबूल कर रहे कि ये मेरे साथ गरीब लोग बैठे हैं, ये बिलाल हबशी राज़ बैठे हैं, ये सुहेब रूमी राज़ बैठे हैं, ये सलमान फारसी राज़ बैठे हैं, ये गरीब गरीब लोग मेरे साथ बैठे हैं, इसलिए ईमान नहीं ला रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अदी कैसर और किसरा के खजाने फतह होंगे, किसरा के खजाने फतह होंगे। फिर एकदम अदी हैरान हुए, किसरा के खजाने फतह होंगे, किसरा के खजाने फतह होंगे। अदी और बताऊं, और बात बताऊं, हीरा देखा है? हीरा कि हीरा का नाम तो सुने, देखा नहीं है। तो प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन ने फरमाया, हीरा से एक औरत चलेगी और सोने से लदी हुई होगी, उसको कोई मैली आंख से देखने वाला नहीं होगा, इतना अमन होगा, मेरे दीन का इतना चर्चा होगा, मेरे दीन का इतना चर्चा होगा, मेरी जिंदगी का इतना चर्चा होगा कि हीरा से एक औरत चलेगी और सोने से लदी हुई होगी, उसको कोई मैली आंख से देखने वाला नहीं होगा। अल्लाह ने ये बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत उमर के जमाने में पूरी कर दी। एक औरत सोने से लदी हुई थी और बैतुल्लाह में दाखिल हुई, उमर ने उसकी लगाम पकड़ ली, सवारी की। वो औरत रोने लगी, चीखने लगी, तुम कौन हो? मैं इतने हीरा से चल कर आई हूं, मुझे मेरी किसी को सवारी ने नहीं पकड़ा, आप कौन हो? उमर की बेटी बस इसी बात को देखना चाहता था, इसी बात को देखना चाहता था कि मेरे प्यारे नबी का फरमान था वो पूरा हो गया है कि और चलेगी और उसको कोई मैली आंख से देखने वाले नहीं, बस बेटी यही देखना चाहता था, नहीं देख। मेरे प्यारे भाइयों, यही मेहनत है, ये हमारा वजीफा हयात है, ये हमारा मकसद हयात है। इतनी प्यारी जिंदगी, इतनी खूबसूरत जवानी, इतनी कीमती जवानी जो अल्लाह ने दी थी, अल्लाह ने अपने दीन के लिए दी थी। इतनी खूबसूरत जवानी, इतनी प्यारी जवानी, इतनी खूबसूरत जिंदगी, और इसका इतना घटिया तरीन मकसद बन जाए कि पैसा कमाने के अलावा और कोई सोच ही ना हो। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय दुनिया, बस यही धुन हो हर वक्त। ना अल्लाह का पता हो, ना अल्लाह के रसूल का पता हो, ना अल्लाह के दीन का पता हो। दुनिया करनी है, छोड़नी नहीं है, लेकिन बकदरे जरूरत करनी है। बाकी सारा वक्त अल्लाह के दीन के लिए। इतनी खूबसूरत जिंदगी, इतनी खूबसूरत जवानी, इतनी प्यारी जिंदगी और इस जवानी और इसका इतना घटिया मकसद ना बन जाए कि सिर्फ पैसा ही हमारी सोच बन जाए।
इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारा काम है, हमारा मकसद हयात है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो दूसरी जुज़ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इसमें एक छुपी हुई जुज़ है, इसमें एक छुपी हुई जुज़ है। उसका भी इकरार करना पड़ेगा, उस पर भी ईमान लाना पड़ेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने नहीं आना। इस पर भी ईमान लाना पड़ेगा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इस आयत में अल्लाह ने फरमा दिया कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इस पर भी ईमान लाना पड़ेगा। जब हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लिया है, अब ये कलमा हमसे ये बहुत बड़ा तकाजा करता है कि फिर चल बिस्तर उठा और फिर सारी दुनिया में, ये कलमा हमसे बहुत बड़ा तकाजा करता है, मुतालबा करता है कि जब तुमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया है और इस पर भी ईमान ले आए कि अब कोई नबी नहीं होगा, अब ये कलमा हमसे बहुत बड़ा मुतालबा करता है, चल बिस्तर उठाओ और फिर दुनिया में, फिर लगा अपनी सारी जिंदगी को, अपनी जवानी को, सोचों को, और फिर सारी दुनिया में सहराओं में, जंगलों में और अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए निकल। ये कलमा हमसे तकाजा करता है, मुतालबा करता है। जी माशाल्लाह, इसके लिए सब भाई तैयार हैं इंशाल्लाह। कौन न का तैयार है इंशाल्लाह। अल्लाह को जो है